Yes, hello. Yes, hello everyone. Till now we have covered Agile Manifesto. We have already seen, right? And then we saw Rational Unified Process (RUP), and in the last, I think last we have seen RUP, and we have seen also RAD, Rapid Application Development. Okay. So Agile Manifesto we have seen. There are some principles of Agile methods. You see what are those? I think you must be clear what is agile. Is it? Okay. So just see the principles of agile methods. Cause don't worry. If it is not clear what is agile, then see the video in which I have already discussed the agile introduction, right? Or I'll be covering. I'll be telling in the brief itself here also. Okay. So yeah, देखो agile होता क्या है? What is agile? Agile means सबसे पहले ये देखते हैं पहले ट्रेडिशनली क्या होता था व्हाट यूज टू हैपन इन ईच मॉडल्स प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए सर्टेन लाइफ साइकिल है हमारे पास एंड सर्टेन फेजेस आर देयर राइट ईच फेज आउटपुट is working as an input for the next phase and this process goes on till maintenance phase okay and the customer has been sorry and the product or the software has been delivered to the customer. This is what actually happens in all the traditional models, right? Okay, now what is the difference which came in agile is when let's main thing is the stakeholders means everyone who is related to that product or project or software means the company, the user, the customer, the developer, the designer, everyone is called as the stakeholders. Okay, whoever is impacted little bit itself, then they are also called as the stakeholders for that particular thing. Okay, so I think stakeholder should be clear. Yes, agile means what they did within 2 or 3 weeks they are supposed to develop one working prototype, okay, and then customer feedback is taken. Then based on this required changes are done. Again customer feedback is done means customer involvement has been increases rapidly, okay, has been increased rapidly. देखो customer should be closely involved throughout the development process. अभी आगे हम लोग XP पढ़ेंगे, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्क्रम। उसमें दिखाएंगे, उसमें रहेगा कि विद ईच मतलब हर डे वाइज पर डे वी हैव अ मीटिंग and all the stakeholders are involved per day for the progress of the work which has been done. Okay, so customer involvement has been increased. देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी अगर बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स तो यही है कि लास्ट में चेंजेस सबसे मिनिमम हो जाएंगे बट कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पर। दिस इज इंक्रीमेंटल डिलीवरी मींस बेसिक वर्जन या फिर मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो हमारा फीचर है कंपनी विल डेवलप दैट फीचर एंड हैंड ओवर टू द customer and then they will be doing the change according to the customer and then they will be adding the features in the software, right? People not process, it means this is no such process is defined that you have to follow this itself. यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे डेवलपर्स हैं द कोडर्स और द डिज़ाइनर्स they are given a free hand somewhat, not fully, so they are advised for the pair programming means
you can work in groups, or you can one developer can give the help to another, or another can take the help from other one. Okay, see, that is why it is a skills of the development team should be recognized. डेवलपमेंट टीम के जो भी मेंबर्स हैं उनका पर्टिकुलर स्किल रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको वही काम पे लगाना चाहिए. एंड team members should be left to develop their own ways of working without prescriptive process. Okay, embrace change. Yeah, expect the system requirements to change, and so design the system to accommodate these changes. जैसे ही मतलब फीडबैक के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे तो सिस्टम में हमें चेंज करने चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए. मेंटेन सिंपलिसिटी, दिस ऑल द प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे एजाइल वर्क करते हैं. मैनिफेस्टो हमने देखे हैं, उन्हीं से रिलेटेड ही है, वही मैनिफेस्टो ही एक तरीके से प्रिंसिपल्स. बेस्ड ऑन दीज मैनिफेस्टोज एजाइल वर्क्स, और बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स एजाइल वर्क, राइट. यू कैन बी आस्क्ड राइट डाउन 5 प्रिंसिपल्स और इस तरीके से. ठीक है. मेंटेन सिंप्लिसिटी मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप होना है उसके लिए हमें सिंप्लिसिटी पे फोकस करना है. मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्क. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एजाइल मेथड एप्लीकेबिलिटी. मीन्स एजाइल कब यूज़ करेंगे हम, व्हेन वी कैन यूज़ द एजाइल मेथड. सिंपल सा फंडा है. बजट ऑटोमेटिकली सारे फेजेस में बढ़ जाएगा. प्रीवियसली क्या होता था कि जो हमारा मेंटेनेंस फेज़ होता था इन द मॉडल्स, मेंटेनेंस फेज़ में सबसे ज़्यादा बजट लगता था. वाई? बिकॉज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट ही मेंटेनेंस में हम करते थे. स्टार्टिंग में किया और लास्ट में किया, बीच में कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है, टीम कंपनी अपने अकॉर्डिंग डेवलप करती चली गई बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. बीच में इन्होंने कस्टमर को कुछ दिखाया ही नहीं, शो नहीं किया, तो इस वजह से लास्ट में मेंटेनेंस फेज में क्या होता था, कस्टमर की तरफ से चेंजेस आते थे, रेगुलरली चेंज आते हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है. अब इसमें क्या किया इन्होंने, दे हैव इन्वॉल्व द कस्टमर्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो एक चीज़ कि कस्टमर का भी हेडेक बढ़ेगा. तो अगर मीन्स वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पर कस्टमर अवेलेबल हो पाए, पहली बात तो, राइट. अदर थिंग इज़ सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करा गया है, तो बीच में ही चेंजेस करने पड़ेंगे हमें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. तो अदर फेजेस में भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, राइट. अदर थिंग, जहाँ पर सर्टेनिटी होती है कि व्हाट वी हैव टू डेवलप, मीन्स देर इज़ अ, मतलब निश्चित है कि यही यही चीज़ें हमें डेवलप करनी है अकॉर्डिंग, ये रिक्वायरमेंट जहाँ पर फुली स्पेसिफाइड है वहाँ पर एजाइल यूज़ नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज देर इज़ अ सर्टेनिटी. बार बार कस्टमर को क्यों परेशान करें हम, व्हेन देर इज़ अ सर्टेनिटी, राइट. सो प्रीवियस मॉडल्स की हेल्प से ही हम डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को ना. अदर थिंग इज़ व्हेन देर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट और द चेंज. ठीक है. when company and the developers are not very much sure about the development of the process or the software, that what type of design, what type of features, what anything related to the software, when these are the things which are not very much clear to the development team and the company, then what they do, they follow the agile. That time agile is the best for the development of the software. I think it should have been very much clear now. So this is what it is written. Product development, where the software company is developing a small or medium sized product for sale. एक ये पॉइंट है. स्मॉल रहेगा तो ईजिली इन्वॉल्वमेंट करके बार बार हम बना सकते हैं, 2-3 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे. ठीक है.
Custom system development with an organization where there is a clear commitment from the customer to become involved in the, या कस्टमर की कमिटमेंट होनी चाहिए कि जब भी आपको इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपके, यू विल बी प्रेजेंट. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम क्या आती है. सिंपल है. कस्टमर का इंटरेस्ट हर समय आपको रखना है. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. टीम मेंबर्स को मोटिवेट करके रखना है बिकॉज दे हैव टू चेंज यूजुअली. ओके. प्रायोरिटाइजेशन इज़ ऑल्सो वन मोर डिफ़िकल्ट थिंग. क्यों? बिकॉज देर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. एज देर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, प्रायोरिटाइजिंग द फीचर्स इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट यार. ठीक है. सिंप्लिसिटी मेंटेन करनी है. ओके, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर. Agile methods we have discussed, nothing is there. Now see, the question, next question which can come or which arises is the difference between the plan driven and agile development. देखो होता क्या है. Plan driven here means the models which we are actually following and the agile which we are studying. Okay, see, plan driven में क्या होता है कि one stage output is working as a will be working as a input to the next stage. Okay. And there is a specified work for each phase. Proper requirement specification is done, and based on that implementation works. Okay. While in agile it is not so. Why? सी, इसमें क्या होता है कि हर फेज से रिलेटेड हमें, बिकॉज देर इज़ अ अनसर्टेनिटी एज वी हैव डिस्कस. सो प्रॉपर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी मेड हेयर. ओके, द मेन डिफरेंस इज द प्रॉपर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी मेड हेयर. So this is negotiated with the other implementation phases. Means while developing or while implementation, the requirement is also specification is also done at that time by the involvement of the customers. This is the main difference. Now you might read out this, everything is written there. ठीक है. देखो ये लिखा है, आउटपुट एक स्टेज की दूसरे स्टेज के लिए डिपेंड होती है. इटरेशंस ऑकर होते हैं यहाँ पर. स्पेसिफिकेशन जॉइंट डेवलपमेंट टेस्टिंग इंटरलीव होती है. मींस सेपरेटली कैरिड आउट नहीं होती है. नेगोशिएशन की हेल्प से होती है. मींस एक स्टेज दो स्टेज का काम करेगी. दिस इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन हेयर. ओके. दिस इज द डायग्राम which is describing the difference between the plan driven and agile specification. See, प्लान बेस्ड में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हुई, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर जब सर्टेनिटी है यहाँ पर, दैट इज़ वाई स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी मच क्लियर. बेस्ड ऑन इट डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन इज़ डन. नाउ चेंजेस रिक्वायर्ड, अगेन डू दिस सेम प्रोसेस रिपीट्स एज इटरेशन फॉलो होता है. यही एजाइल में क्या होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट्स को. देर इज़, सो यहाँ पर क्या किया गया, नेगोशिएट कर दिया गया है किसको, किस फेज़ को, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को. किसके साथ, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के साथ. यहीं पर होगा. राइट. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म करी जाती है इनिशियल लेवल पर. देन अगेन डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज़ डन वेयर specification is itself negotiated. Okay, I think that is much for today. From the next lecture, in the next lecture we will be covering extreme programming. Okay, thank you everyone.